Good evening, friends. Once again, welcome back, all of you. In this video, we are going to discussing some various important question in Q's manner. So let's start without delay. One by one, you have just 10 seconds after reading the question. So let's see the first question on your screen. Here is: consider the following statement regarding sulfur dioxide emission. First option: India is the largest emitter of anthropogenic sulfur dioxide. Second, in India, sulfur dioxide SO2 emission have been increasingly significantly in the last 4 years. Thermal power stations are the biggest emission hotspot in India. Which are the right answer? Your time start now. तो इसका सही जवाब, आई थिंक यू नो अबाउट दैट. Yes, 2 is absolutely wrong. So A, C and D are eliminated. The right answer is B, 1 and 3. India is the largest emitter of anthropogenic sulfur dioxide. Yes, but SO2 emission have been increasingly, it's a wrong, it's a decreasing significantly in the last 4 years. But thermal power station are the biggest emission hotspot in India. Let's see the answer. B is the right answer. For the first time in 4 years, India's sulfur dioxide emission recorded a significant decline. This is significant decline, 6% in 2019 compared to 2018. Steepest drop in 4 years according to the report from Greenpeace India and the Center for Research of Energy and Clean Air CREA के अनुसार. In India, 21% ग्लोबल एंथ्रोपोजोनिक सल्फर डाइऑक्साइड इमिशन, 21% इमिशन ग्लोबली योगदान है सल्फर डाइऑक्साइड का भारत का. एज पर द बिगेस्ट इमिशन हॉटस्पॉट इन इंडिया, द थर्मल पावर स्टेशन जो कि सिंगरौली में, नवेली में, मुंद्रा में, कोरबा में, तलचर में, जादूगोड़ा, कच्छ, सूरत, चेन्नई एंड many one. So you can simply say, second question, which of the following source produces sulfur dioxide emission? किस किस से सल्फर डाइऑक्साइड इमिशन होता है? ये ऑप्शन रहे: वोल्केनोज, फाइटोप्लैंक्टन, बर्निंग ऑफ द कोल एंड ऑयल, स्मेल्टर ओवेंस. सेलेक्ट द कोड गिवन बिलो. 1 2 3 1 3 1 3 4 1 2 3 4. The correct answer is D is the right answer. All are the right. Natural sources जैसे volcano, fire, phytoplankton produces sulfur dioxide, but burning sulfur rich fossil fuel like primary coal, oil, petroleum is the main source of gas. Smelter ovens are use of the concentrate metal found in also. In addition to the human harming health, sulfur dioxide reacts with the water to vapor produce acid rain. Sulfur dioxide can also react in the atmosphere to form aerosol particles which can contribute to outbreak of the haze and influence the climate. Okay, third question from related to रिगार्डिंग एनिमल डिस्कवरी 2019 और प्लांट डिस्कवरी 2019 के बारे में कौन सा कथन सही है? एनिमल डिस्कवरी 2019 जिसको रिलीज किया गया जेडएसआई के द्वारा, जबकि प्लांट डिस्कवरी जिसको रिलीज किया गया बीएसआई के द्वारा. क्या ये सही है? जेडएसआई यूज डीएनए बारकोडिंग, जीनोम सीक्वेंसिंग ऑन एक्सरे फॉर आइडेंटिफिकेशन न्यू स्पीसीज. क्या जेडएसआई डीएनए बारकोडिंग, जीनोम सीक्वेंसिंग, एक्सरे का इस्तेमाल न्यू स्पीसीज को पहचान करने में इस्तेमाल करता है? और फाइनल तीसरा ऑप्शन है मैक्सिमम प्लांट डिस्कवरी वेयर मेड फ्रॉम द ईस्टर्न हिमालयाज. इज राइट और रॉन्ग? ऑप्शंस आर हियर and I think you got the answer. This is very simple. The right answer is A is the right answer, ZSI.
ZSI 1 and 2, while ZSI and BSI recently released animal for ZSI or botanical survey of plant discoveries risks. Along the conventional taxonomy, ZSI has introduced modern method जैसे कि DNA barcoding, genome sequencing, X-ray फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ न्यू स्पीसीज. प्लांट डिस्कवरी 2019 ने 180 नए प्लांट स्पीसीज और 73 रिकॉर्ड्स डिस्कवरी किए हैं फ्रॉम द कंट्री से. तो यू कैन सिंपली से कि द नंबर ऑफ प्लांट स्पीसीज फाउंड इन इंडिया अकाउंट्स रफली 12% ऑफ ऑल फ्लोरा एंड स्पीसीज इन द वर्ल्ड. 12% का योगदान है. ZSI एंड BSI हैव बीन रिलीजिंग एनिमल डिस्कवरी एंड प्लांट डिस्कवरी सिंस फ्रॉम 2007. इसलिए प्रथम स्टेटमेंट जो था वो गलत था. और दिस इज द 13th पब्लिकेशन और 2007 से ये प्रक्रिया चल रही है. तो फर्स्ट ऑप्शन ऑटोमेटिकली विल बी रॉन्ग. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. दिए गए न्यूक्लियर पावर प्लांट इनमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है? विच आर नॉट करेक्टली मैच्ड. क्या कहेगा? कर्नाटक में है, नरोरा गुजरात में है, तारापुर महाराष्ट्र में है. ऑप्शन आर हियर एंड टाइम स्टार्ट नाउ. तो दिस इज द सिंपलेस्ट क्वेश्चन. You know about that Narora in Uttar Pradesh. So 2 is the right answer. I think you know about Narora. 2 is the right answer. B is the right answer. That means 2. Atomic power plant is located in Uttar Pradesh. Narora is in Uttar Pradesh. Sorry for that. And finally, 5th question. Manesar, Pimpri, Chinchwad और परम्बदूर आर कंसिडर्ड इन द हब्स ऑफ इंडिया फॉर. किसके लिए ये हब्स हैं? मानेसर किसके लिए? श्री पेरम्बुदार या पेरम्बदूर विच आर फेमस फॉर व्हाट? इज इट फेमस फॉर मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग? क्या ये मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के लिए जाना जाता है? इंटरनेशनल फिनेंशियल स्टेटस है यहाँ पर, एनिमल हस्बेंड्री है या फिर ऑटोमोबाइल्स है? नाउ यू कैन सिंपली से सर दिस इज सिंपलेस्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सीरीज. यस, आई एम राइट. यू आर ऑल्सो राइट. Automobiles is the right answer. D is the right answer. Okay, next series for the 5 question. Next 4, consider the following statement regarding the heat dome. हीट डोम के बारे में दिए गए कथनों पर विचार करते हुए बताइए कि कौन सा स्टेटमेंट सही है. पहला, हाई प्रेशर सर्कुलेशन इन एटमॉस्फेयर एक्ट लाइक ए डोम ट्रैपिंग हीट एट द सरफेस एंड फेवरिंग द फॉर्मेशन ऑफ हीट वेव. हाई प्रेशर सर्कुलेशन जो वातावरण में बनता है वो एक डोम की तरह कार्य करता है जो हीट को अपनी तरफ ट्रैप कर लेता है एट द सरफेस पे और इससे हीट वेव की जन्म होने के लिए एक सुंदर सा कंडीशन बन जाता है. दूसरा, रिसेंटली द हाई टेम्परेचर रिकॉर्डेड एट द वेस्ट कोस्ट ऑफ USA जिसके कारण हीट डोम बन रहा है. क्या दोनों स्टेटमेंट सही है? विच आर द राइट और रॉन्ग? कैन यू गिव द आंसर? यस, दिस इज सिंपलेस्ट क्वेश्चन. आई थिंक answer is B is the correct answer. Let's see. Sorry, this is the both are correct answer. Both are right. Once again, I would like to explain about it. High pressure circulation in the atmosphere acts like a dome or cape, trapping heat at the surface and favoring the formation of heat wave. Heat domes occur when the atmosphere traps hot ocean air like a cape. Okay. Recently high temperature recorded at the USA. अभी हाल में ही हाई टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है जिसके कारण वहाँ पर हीट डोम के निर्माण की घटना देखने को मिली. कैलिफोर्निया डेथ वैली रजिस्टर्ड द टेम्परेचर 54 डिग्री के आसपास सेल्सियस के आसपास देखा गया जो कि 129 फ़ारेनहाइट से ऊपर है. वंस वेरीफाइड कुड बी द हॉटेस्ट टेम्परेचर इवर रिकॉर्डेड ऑन द अर्थ, जो कि हो सकता है कि पृथ्वी के सबसे अधिक टेम्परेचर वाला स्थान हो जाए. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर क्वेश्चन नंबर 2, कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट. ओके, क्या म्यांमार, मलेशिया और वियतनाम शेयर करते हैं थाईलैंड के साथ बाउंड्री? दूसरा, करा कैनाल इज ए प्रपोज्ड कैनल दैट वुड कनेक्ट the Gulf of Thailand with the Andaman Sea. Which of the above statement are incorrect? ऑप्शन ध्यान से सुनिए. which are incorrect. कौन सा इनकरेक्ट है? तो यू नो अबाउट दैट करा कैनल का प्रपोज
चल रहा था अभी, तो डेफिनेटली सेकेंड स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली राइट. आई मीन यू कैन सिंपली से ए इज द राइट आंसर. Thailand is bordered Myanmar, Laos, and Malaysia. Its maritime boundary include Vietnam in the Gulf of Thailand to the southeast, and Indonesia and India on the Andaman Sea to the southwest. Kara Canal या Kara Isthmus Canal refers to proposal for the canal that would connect the Gulf of Thailand with the Andaman Sea. ये गल्फ ऑफ थाईलैंड और अंडमान सी को जोड़ देगा करा स्थमस से इन द साउथ ईस्ट सदर्न थाईलैंड की जो स्थान है वहाँ पर. ओके, थर्ड क्वेश्चन रिलेटेड फ्रॉम मियावाकी मेथड. बहुत ही इजी प्रश्न है. दिस इज़ द सिंपलेस्ट क्वेश्चन ऑफ द सीरीज. मियावाकी मेथड किसके लिए है? क्या ये वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट है? क्या ये एफोरेस्टेशन टेक्निक है? वाटर स्टोरेज टेक्निक है? या फिर ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन है? विच आर राइट आंसर? एब्सोल्युटली इज द बी इज द राइट आंसर. यू नो मियावाकी मेथड एक जापान से ओरिजिनेटेड हुआ है, जो कि हाल में कई देशों के द्वारा इसको अडॉप्ट किया गया है, ताकि जो अर्बन इंडियन अर्बन स्पेस में बहुत जगह की कमी हुई है वहाँ पर सिंपली यू कैन सी कि इसके द्वारा नेचुरल वेजिटेशन या लैंड जो डिस्टोर हो चुका है उसको फिर से हरा भरा बनाना मियावाकी मेथड के द्वारा की जा सकती है, क्योंकि इसमें आप आसानी से घने फॉरेस्ट उगा सकते हैं कोस्टलाइन के किनारे भी, जो जापान में उगाया जाता है. जबकि इन कंट्रास्ट टू द कन्वेंशनल प्लांटिंग, दिस मेथड अलाउ फॉर प्लांटिंग मोर नंबर ऑफ ट्रीज इन स्मॉल स्पेस. छोटे से ही जगह में आप ढेर सारे प्लांट्स को उगा सकते हैं, जो कि कन्वेंशनल मेथड में होता नहीं है. दिस ट्रीज ग्रो फास्टर टू, और ये ट्री बहुत तेज़ी से उगते हैं, फ्री फ्रॉम केमिकल एंड फर्टिलाइजर. और द एडवांटेज ऑफ मियावाकी मेथड इज़ द सैपलिंग नीड मिनिमम मेंटेनेंस. आपको सैपलिंग को ज़्यादा मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है. ओके, एंड फाइनली फोर्थ क्वेश्चन में पहुंच चुके हैं. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. T/2 goal is a global commitment that was set by the governments of the 43 tiger range countries to the double number of the wild tigers by 2030. It is 2030. दूसरा ऑप्शन है GEF इज़ द ओनली इंटरगवर्नमेंटल इंटरनेशनल बॉडी है जो कि इस्टेब्लिश किया गया है with the members from willing countries to embark on a global campaign to protect the tiger. Options are here. Which is right or wrong? Can you say is the correct answer? One absolutely wrong है, क्योंकि ए कट गया, डी कट गया, तो डेफिनेटली यू विल गेट द आंसर इज द राइट आंसर. आई थिंक चौथा प्रश्न का जवाब जी हाँ, सी इज़ द राइट आंसर. तो T/2 गोल इज़ द ग्लोबल कमिटमेंट, डबल द वर्ल्ड्स वाइल्ड टाइगर, बट 2022 इससे 2022 तक में करना है, ना कि 2030 तक. T/2 स्टैंड टाइगर टाइम्स 2 सिग्नलिंग द गोल डबल. Okay, so you got the answer. C is the right answer. It was launched by the World Wide Fund for Nature. Okay, सेंट पीटर्सबर्ग टाइगर समिट हुआ था रसिया में 2010 में. इसमें 13 टाइगर रेंज कंट्रीज अग्रीड किए थे डबल द वर्ल्ड टाइगर पॉपुलेशन बाय 2022 तक. ओके,
GTF मात्र दुनिया का एक ऐसा इंटरगवर्नमेंटल इंटरनेशनल बॉडी है जो इस्टेब्लिश किया गया है मेंबर्स के द्वारा ताकि ग्लोबल कैंपेन फॉर टाइगर प्रोटेक्शन हो सके। ओके, फाइनली लास्ट प्रश्न, थॉवेट्स ग्लेशियर जो भी चर्चा में था कहाँ पर दिखा, लोकेटेड कहाँ पर है ये, तो यू नो अबाउट दैट आंसर, फिनलैंड, आइसलैंड, स्वालबार्ड, अंटार्कटिका। ऑप्शंस आर हियर एंड टाइम स्टार्ट नाउ। D is the right answer. Antarctica is the right answer. In the Antarctica floats a massive glacier roughly ब्रिटेन के साइज़ के बराबर, जिसका मेल्टिंग होना स्टार्ट हो चुका है, जो एक अलार्मिंग कंडीशन है पूरे विश्व के लिए ओवर द ईयर्स। ओके, नेक्स्ट 5 क्वेश्चन ऑफ सीरीज। विच ऑफ द फ्लोइंग आर मेनली द प्राइमरी सोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एडिबल ऑयल इन इंडिया? कौन कौन से सोर्स है जो खाद्य तेल उत्पन्न होते हैं इससे? सोयाबीन, ग्राउंड नट, कॉटन सीड, राइस ब्रेन, सीसम। विच इज द राइट आंसर? आई थिंक यू गॉट द आंसर। वेरी सिंपलेस्ट क्वेश्चन, बट डोंट कंफ्यूज। सेट 1 2, दिस इज सोयाबीन इज द राइट। सेट 2, ग्राउंड नट इज द राइट, एंड फाइनली सीसम। ओके, लेट्स सी द आंसर। बी इज द राइट आंसर। जैसा कि आप जानते हैं कि गवर्नमेंट का प्लान है डबल फार्मर इनकम के तहत अचीविंग सेल्फ सफिशिएंसी ऑयल सीड प्रोडक्शन 2030 द मेजर टारगेट। ये जो ऑयल सीड प्रोडक्शन है उसमें मेजर टारगेट है। द स्ट्रेटजी फॉर द सेल्फ सफिशिएंसी शुड इनकम्पास ऑल 3 सक्सेस ऑयल 7 एडिबल, जिसमें कि सोयाबीन है, रैपसीड मस्टर्ड है, ग्राउंड नट है, सीसेम है, सनफ्लावर है, साफ्लावर है और नाइजर है। ओके, सेकंड क्वेश्चन रिगार्डिंग द रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट से संबंधित प्रश्न है। कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट अबाउट रेट्स स्ट्रक्चर्ड ऑन लाइन्स ऑफ द म्यूचुअल फंड। REITs are securities linked to the real estate that can be traded on the stock exchange. Second statement, the minimum investment requirement 5 lakh for the retail investor. 80% of value of a rate should be invested in the rent generating asset. Which are the right answer? I think you know about that answer. करेक्ट प्राप्त करना है आपको और आंसर आपके हैं जी हाँ, आंसर आपको देखना पड़ेगा। आंसर सी इज़ द राइट आंसर। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट was formally inaugurated in India in 2019. Structure on the lines of the mutual funds. Rates are the securities linked to the real estate that can be traded on stock exchange. आप इसमें stock exchange में आप इसको ट्रेड कर सकते हैं आफ्टर देयर लिस्टिंग। आप पहले लिस्ट कराइए उसको, उसके बाद however unlike the mutual fund, physical real estate is underlying asset in rates. SEBI has reduced investment limit 2 लाख रुपया कर दिया गया है, से उसको 50,000 कर दिया गया 2019 में। अमेंडेड विच इन्हेंसेस द प्रोस्पेक्ट ऑफ रेट्स, ताकि इसका डिमांड ज़्यादा से ज़्यादा हो। रेट्स आर फार लेस वोलाटाइल देन द स्टॉक मार्केट, ये थोड़ा सा कम लेस वोलाटाइल है। FD, म्यूचुअल फंड्स, गोल्ड एज द रेगुलेशन मेंटेन दैट 18% ऑफ द रेट्स लिस्टिंग मस्ट बी रेंट जनरेटिंग एसेट। According to the SEBI rules, REITs are also distribute 19% or more of its earning to be in interest or rent to investor unit holders. तीसरे प्रश्न में आते हैं हम लोग। कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020, अभी हाल में निकला है। आउट ऑफ द टोटल कंट्रीज रैंक इन ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020, more than 3/4 of the countries
फार बेटर देन इंडिया, क्या 3/4 देश इंडिया से भी बेहतर स्थिति में है? दूसरा, ग्लोबल हंगर इंडेक्स कंप्रेसिवली मेजर एंड ट्रैक हंगर एट द ग्लोबल लेवल, रीजनल लेवल, कंट्री लेवल्स, क्या ये सही है? और ग्लोबल हंगर इंडेक्स इज पब्लिश्ड बाय द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इट्स अ वेरी सिंपलेस्ट ऑप्शन, आई थिंक यू कैन easily eliminated. ऑप्शन थर्ड इज द रॉन्ग स्टेटमेंट, बी इज द ऑटोमेटिक खत्म, डी खत्म, तो ऑप्शन ए एंड 1 और 2 दोनों सही है, आई मीन ए इज़ द राइट आंसर। जो इंडिया का रैंक है 94 है, वो भी 107 कंट्री में। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 2020 में जो निकला है, सीरियस हंगर कैटेगरी में रखा गया भारत को, 27 अंक मिले हैं लगभग। इंडिया का रैंक जो था पहले 102 था, अब आउट ऑफ 117 में लास्ट ईयर अब 94 हो गया है 107 में। इंडिया फीचर बिहाइंड नेपाल, नेपाल से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, इंडोनेशिया से भी हम लोग पीछे हैं। टोटल 107 कंट्री में ओनली 13 कंट्री ऐसे हैं जो इंडिया से ख़राब स्थिति में हैं, जिसमें कि रवांडा, निजारिया, अफ़गानिस्तान, लिबेरिया, मोजाम्बिक, ये सब आते हैं। हमारी गिनती इसमें हो रही है, सोचिए किस तरह दयनीय स्थिति में हम लोग पहुँच गए हैं। ओके, ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो कि आपको पता होगा जॉइंटली पब्लिश किया जाता है कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्थ हंगर के द्वारा, वेल्थ हंगर लाइव के द्वारा। ओके, जो कि ट्रैक करता है ग्लोबल लेवल में, रीजनल लेवल में और कंट्री बेस्ड लेवल में भी। ओके, फोर्थ क्वेश्चन, कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फ्यूचर अर्थ। फ्यूचर अर्थ जो कि 10 साल का इंटरनेशनल रिसर्च प्रोग्राम है, जिसका एम क्या है? बिल्ड नॉलेज अबाउट द इन्वायरमेंटल ह्यूमन एस्पेक्ट ऑफ ग्लोबल चेंज एंड द फाइंड ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और उस वैसी मतलब ऐसी स्थिति को प्राप्त करना, ऐसी सॉल्यूशन को प्राप्त करना जिससे सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्राप्त हो। क्या ये सही है? फ्यूचर अर्थ harness and experiences and reach the thousands of the scientists and innovators from across the global. Or finally, it forms the strategic partnership with the international organization that supports the global sustainability research action, which is the right answer. I think you got the answer, is the D in the right answer. फ्यूचर अर्थ जो कि 10 साल का इंटरनेशनल रिसर्च प्रोग्राम है, विच एम्स टू बिल्ड नॉलेज अबाउट द एनवायरमेंटल एंड ह्यूमन एस्पेक्ट ऑफ द ग्लोबल चेंज एंड फाइंड द सॉल्यूशन फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट. इट एम्स टू इंक्रीज द इम्पैक्ट ऑफ द साइंटिफिक रिसर्च ऑन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट. वी आर लुकिंग क्लोजली एट द interconnectedness of the Earth's major system: climate, water, land, ocean, urban, economic, energy, health, biodiversity, and governance system, and developing evidence based on strategy for the global sustainable compliant development. Future Earth harnesses the experiences and reach out of thousands of the scientists and innovators from across the globe, including the variety of partners and funders. Okay, Future Earth form strategic partnership with the international organization. Okay, finally, fifth question, consider the following statement regarding the सिगुर प्लेटो. ये सिगुर प्लेटो जो अभी चर्चा में था, इसके बारे में कौन सा ऑप्शन सही है? तो सिगुर प्लेट is a notable and important wildlife corridor between the Vindhya range and Satpura range. Is right. Sigur Plate is known for the large number of the elephant and tiger population. I think. What is the answer? Can you say? Yes, B is the right answer. 1 is the wrong statement. सिगुर प्लेट एक ऐसा प्लेट है जो कि नॉर्थ और ईस्ट ऑफ नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट इन द नीलगिरी हिल्स ऑफ तमिलनाडु में, ना कि विंध्या और इस सतपुड़ा के बीच में. सिगुर प्लेट इज़ ए नोटेबल एज इम्पोर्टेंट वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर है, जो कि मेंटेनिंग करता है, कनेक्टिंग करता है बिटवीन द वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट को टू द सस्टेन द एलिफेंट एंड टाइगर्स नंबर एंड देयर जेनेटिक डाइवर्सिटी. इट्स ए इंपॉर्टेंट लिंक बिटवीन द सेवरल कंटिजियस प्रोटेक्टेड एरियाज, जिसमें नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व आता है, जो कि लार्जेस्ट प्रोटेक्टेड एरियाज़ है इंडिया में. दिस एरिया सपोर्ट लगभग 6300 एलिफेंट को मतलब एक तरह सुरक्षा प्रदान करता है, डिपेंड द लार्जेस्ट सिंगल पॉपुलेशन ऑफ द एलिफेंट्स एंड द टाइगर्स इन इंडिया. तो इन दिस वीडियो वी डिस्कस्ड ऑलमोस्ट 15 क्वेश्चन विद द एक्सप्लेनेशन. वॉच माई वीडियो. इफ़ यू लाइक और getting something benefit from this video, please subscribe my channel or share my video. I try my best to come with such type of videos on same manner, but your support requires, because it gives me some
enthusiasm to doing such type of videos. Okay, thanks a lot for watching this video once again.